ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਾਫੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਾਫੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਮੈਂ। حضور میں آیا، تیرے حضور میں آیا، دل نذرانہ نال لے آیا، دل نذرانہ نال لے آیا، میرے کر سایہ میں نہ رل جاواں میں، میرے تے کر رحم دا سایہ میں نہ رل جاواں میں۔ اچھیاں شاناں والیا شافی، نظراں تینوں چڑھاواں میں۔ توبہ میری توبہ کرنا، توبہ میری توبہ کرنا، تیرے اگے سر نوں دھرنا، تیرے اگے سر نوں دھرنا، حضور میں وعدہ کرنا، بریاں راواں نہ جاواں میں، تیرے حضور میں وعدہ کرنا، بریاں راواں نہ جاواں میں۔ اچھیاں شاناں والیا شافی، نظراں تینوں چڑھاواں میں۔ مینوں دے دے گناہ دی معافی، مینوں دے دے گناہ دی معافی، آکھن تینوں جگ دا شافی، آکھن تینوں جگ دا شافی، دکھ سہے نے میں تے کافی، دکھاں چ نال مک جاواں میں، دکھ سہے نے
काफी दुखा सुना मुक जावां मैं जिया शाना वाले अजाबे नजरां तेनू चढ़ावां मैं गीत तेरे नाम दे शाबे लोकां सरों को झुकाए रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करें। आज का कलाम कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना फलदार साबित। सरों को झुकाएं। सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। तो आए दोनों हाथों को आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे, बैठे बैठे ही हवा में लहराएंगे और खुदा को वेलकम करेंगे जो हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो आज हम अपनी नसीहत और खुदा के जलाल के लिए, जो खुदा ने फिर इस साल JFC को एक नई आयत दी है, उसी आयत मुबारक से हम सीखेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, खोलें, मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 11वां बाब, उसकी 6वीं आयत मुबारक की तलावत को सुनेंगे। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो, आमीन। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब कि खुदा ईमानदार को पसंद करता है। खुदा ईमानदार को पसंद करता है। आज का मजमून है, खुदा ईमानदार को पसंद करता है। जो ईमान नहीं रखता, खुदा इसका मतलब उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब कि खुदा ईमानदार को पसंद करता है। आमीन। तो आज का मजमून भी यही है कि खुदा जो है ईमानदार को पसंद करता है। आमीन। ईमान है क्या जिसकी वजह से खुदा पसंद करता है? ईमान, कलाम मुकद्दस फरमाता है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें इंसान को नजर ना आती हो, वो इंसान के दिल में हो, मन में हो कि ये मैंने हासिल कर ली है, ये मेरे लिए काम हो गया है, तो उसको ईमान कहते हैं। अगर आप बीमार हैं तो हमारे अंदर ये ईमान होना चाहिए कि मैंने शफा पा ली है। आमीन। इसको ईमान कहते हैं। जिस तरह कलाम मुकद्दस फरमाता है, इसी चैप्टर की 7वीं आयत लिखा कि ईमान ही के सबब से नूह ने
ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں، ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ کیونکہ جب خدا کے بندہ کو خدا نے طوفان کے بارے میں بتایا کہ 40 دن 40 رات بارش آئے گی، تو نوح کو اس وقت بادل نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس نے ایمان کے ساتھ کشتی بنانا شروع کر دی اور خدا کی منادی کرنا شروع کر دی کہ 40 روز اور 40 رات بارش آئے گی، طوفان آئے گا، دنیا ساری اور دنیا کی ہر ایک چیز برباد ہو جائے گی، تو توبہ کرو، یہ منادی اس نے کرنا شروع کی۔ لیکن جو ایمان ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو چیزیں نظر نہ آتی ہوں، اور ایمان جو ہے خدا ایماندار کو پسند کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس کے اندر متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم کو سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا۔ ایمان کے ساتھ آمین۔ اس پہاڑ کو کہو گے اکھڑ جا تو وہ اکھڑ جائے گا جب آپ ایمان کے ساتھ کہیں گے، کیونکہ یسوع کہتا ہے 21ویں باب کی 22ویں آیت میں، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ آمین۔ رسول اعظم بھی یہ بات کرتا ہے کہ ایمان لانے، خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات فرمائی کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ جب یسوع آئے گا، موجود ہوگا، وہ بدلہ بھی دے گا، وہ حالات کو چینج کرے گا۔ آمین۔ ہمارے اندر ایمان ہو کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آ گئے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے، آ گیا ہے، وہ بدلہ دے گا، ہمیں چنگا کرے گا۔ جس آس کو، امید کو لے کر خدا کے حضور جھکے ہیں وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ خدا کہتا ہے شک نہ کرو گے تو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے پہاڑ کو کہو گے اکھڑ جا تو وہ اکھڑ جائے گا۔ آمین۔ ایمان سے بیماری کے پہاڑ کو کہو گے تو وہ اکھڑ جائے گا۔ ایمان سے بیماری کے پہاڑ کو کہو گے تو وہ اکھڑ جائے گا۔ کہنا ایمان نہ لے۔ ایمان سے تنگ دستی کے پہاڑ کو کہو گے تو وہ بھی اکھڑ جائے گا۔ آمین۔ ایمان سے بے روزگاری کے پہاڑ کو کہو گے تو وہ بھی اکھڑ جائے گا۔ ایمان سے بے ترتیبی کے پہاڑ کو کہو گے تو وہ بھی اکھڑ جائے گا، کیونکہ میرے اور آپ کے یسوع نے یہ کہا ہے کہ ایمان سے کہو گے تو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ آمین۔ کیونکہ کلام اس چیز کو فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان ہی معجزے ہوں گے۔ جو ایمان لائیں گے، جو ایمان رکھیں گے، جن کے اندر ایمان ہوگا، ان کے درمیان ہی معجزے ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کے درمیان معجزے نہیں ہوتے۔ جو ایمان رکھتا ہے کہ میں نے یہ اپنے خدا سے مانگ لیا ہے، یہ میرے لیے ہو گیا ہے، ڈن ہے، اس کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے۔
ਜੋ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ रहता है, ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ, खुदा ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ है कि नहीं, वो शक करता है। वो ऐसा है जैसे समुंदर की लहर, वो मौजज़ा हासिल नहीं कर सकता। खुदा जो है ईमानदार को पसंद करता है। आमीन आमीन। खुदा ईमानदार को पसंद करता है, बेईमानों को पसंद नहीं करता, जो ईमान नहीं लाते उनको पसंद नहीं करता। खुदा ईमानदारों को पसंद करता है। अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, मेरे साथ देखिए, ज़बूर की किताब निकालिए जल्दी से, ज़बूर 101 उसकी 6ठी आयत के अंदर यह बात लिखी हुई है। छठी आयत का पहला हिस्सा पढ़ेंगे तो लिखा है, मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। आमीन। मुल्क के ईमानदारों पर खुदा कहता है मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। खुदा ईमानदारों को अपने साथ रखना चाहता है। आमीन। क्योंकि ये कलाम फरमाता है खुदा ईमानदार को पसंद करता है और वो अपने साथ रखना चाहता है। लिखा है मुल्क के ईमानदारों पर मेरी खुदा निगाह रखेगा। आमीन। मुल्क के ईमानदारों पर निगाह रखता है। क्यों रखता है? कि वो मेरे साथ रहें। आमीन। खुदा उनको अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि उनको पसंद करता है। आमीन। सुने, दुनियावी तौर पे हम जिस किसी को पसंद ना करते होंगे तो क्या उसके साथ रहना पसंद करेंगे? हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जिसको पसंद ही नहीं करते उसके साथ रहना भी पसंद नहीं करते। खुदा ईमानदारों को पसंद करता है, इसलिए खुदा उनको अपने साथ रखना चाहता है। आमीन। तो हमें खुदा पर ईमान रखना है कि जो कुछ हम अपने खुदा से मांगते हैं वो हमारे लिए कर देगा, हो जाएगा, हो गया है। जब हम हो गया तो रहेंगे कि वो हो गया है, खुदा ने कह दिया है, तो फिर हमारी जिंदगी में मौजज़े होने शुरू हो जाएंगे। आमीन आमीन। जब हम खुदा के पास ईमान के साथ आते हैं, सुने कि मैं खुदा के पास जा रही हूं या जा रहा हूं, जो मैं रिक्वेस्ट, जो मैं दरखास्त अपने खुदा के पास लेकर जा रहा हूं या जा रही हूं, आज मेरी पूरी हो जाएगी। फिर जिंदगी में मौजज़ा होगा, फिर जिंदगी में तब्दीली होगी, फिर जिंदगी सेम नहीं रहेगी, पहले जैसे नहीं रहेंगे, फिर मौजज़ात के साथ हम वापस लौटेंगे। मैं आपके सामने एक ऐसा वाकया रखूंगा, मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब। मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी 25वीं आयत से इस हवाले को हम पढ़ेंगे। इस वाकया से आप सब वाकिफ हैं। मैं बता रहा था कि जब ईमान के साथ अपने खुदावंद के पास आते हैं, जो हमारे अंदर होता है कि आज मैं ईमान के साथ खुदा के पास जा रही हूं या जा रहा हूं, तो जो मैं आस उम्मीद लेकर जा रहा हूं वो मेरी पूरी हो जाएगी, तो फिर वाकया ही पूरी हो जाएगी। आमीन। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और वो कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर
भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफोर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफोर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसको कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। ये औरत खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि 12 साल से बीमार थी। कई तबीबों के साथ, कई हकीमों के पास गई, बहुत सी मेडिसिन यूज की, लेकिन कलाम बयान करता है कि उसकी बीमारी और बढ़ती गई। दवाइयों से, मेडिसिन से वो अच्छी नहीं हो सकी, बीमारी उसकी और बढ़ गई, तकलीफ में पड़ गई। फिर उसने यीशु का हाल सुना, यीशु के बारे में सुना कि यीशु मौजज़े करता है। यीशु के बारे में सुनकर वो मौके की तलाश में है कि यीशु मुझे कहां मिलेगा। कलाम के अंदर लिखा कि यीशु बड़ी भीड़ के साथ गुजर रहा था, तो वो पीछे से आई है, क्योंकि उस वक्त शरीयत का दौर था। ऐसी हालत में औरत शरीयत की किताब पढ़े तो लिखा कि ऐसी हालत में औरत किसी बर्तन को हाथ नहीं लगा सकती थी, क्योंकि वो बर्तन भी नापाक, जिस चारपाई पर बैठती वो चारपाई नापाक। ऐसी हालत में औरत किसी पाक मजमा में नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो नापाक होती थी। शरीयत के दौर में वो डरती हुई इस बात से कि मैं सामने से जाऊंगी, बहुत से लोग, बहुत सी बहनें मेरी बीमारी से वाकिफ हैं, वो यीशु के पास मुझे लोग नहीं जाने देंगे। इसलिए वो डरती हुई, कांपती हुई भीड़ के पीछे से गई, और उसके अंदर ये ईमान है। क्या ईमान है? कि मैं जाऊंगी यीशु के पास। हालेलुया। पीछे से चली जाऊंगी, उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ईमान के साथ आई है, अपनी सोच बदल ली उसने। अब मैंने किसी हकीम के पास नहीं जाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, अब मैं जाना है तो यीशु के पास जाना है, यीशु से शिफा लेनी है, उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अंदर ईमान ने एक वलवला, ईमान का एक वलवला है, अंदर ईमान का जोश है, ईमान से भर गई है। जब वो ईमान से भरी है, यीशु के पास आई है। आमीन। यीशु के पास आई है, छुप छुप के आई है। यीशु भीड़ के अंदर मसरूफ है, बड़ी भीड़ उसके साथ है, लोग उसके ऊपर गिर रहे हैं। कलाम बयान करता है इतनी ज्यादा भीड़ है। पीछे से आकर उसने पोशाक को
छू लिया है। आमीन। पोशाक को छू लिया है तो वो उसकी बीमारी जो खून बह रहा था उसी वक्त वो बंद हो गया है। आमीन। यीशु अपने शागिर्दों से कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है। सुने यीशु की बात। शागिर्द कह रहे हैं कि खुदावंद भीड़ इतनी ज्यादा है, लोग ऊपर गिर रहे हैं, फिर भी तू कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है। यीशु क्या कह रहा है? किसी ने मुझे ईमान के साथ छुआ है। दूसरा टच होना और ईमान के साथ छूना, उसमें फर्क है। क्यों? यीशु कहता है किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है। हालेलुया, हालेलुया। कुव्वत निकली है, और जब कुव्वत निकली है, उस कुव्वत के जरिए उस बहन ने शफा पाई है। आमीन, आमीन। तो फिर यीशु अपनी जगह खड़ा हो गया है, रुक गया है, देखे कि किसने ये ऐसा काम किया है। चारों तरफ निगाह करता है। जब उस बहन को, उस औरत को पता चल गया है कि यीशु मुझे ढूंढ रहा है, तो लिखा है कलाम के अंदर कि वो गिर पड़ी है यीशु के कदमों में आके। उसने अपना हाल सच सच बता दिया है कि जो कुछ उसके साथ हुआ था। तो यीशु ने कहा, लिखा है कलाम के अंदर, उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली है, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। जब हम भी यीशु के पास ईमान के साथ आएंगे तो हम भी अपनी बीमारी से रहाई पाएंगे, अपनी दिल की मुराद को पूरा करेंगे, अपनी आस उम्मीद पूरी करेंगे जब ईमान के साथ आएंगे। क्यों? यीशु जो है उसका शिफा देने का, उसका बरकत देने का क्या है? वो ईमान के लेवल को देखता है। यीशु ईमान के लेवल को देखकर फिर कहता है कि जा मेरे बेटे, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जा मेरी बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यीशु जो है ईमान का लेवल देखकर शिफा देता है, बरकत देता है, सर बुलंद करता है, बढ़ाता है। आमीन। जब तक हमारे अंदर ये ईमान नहीं होगा, यीशु को हम पसंद नहीं आएंगे। क्योंकि कलाम बयान करता है, रसूल आजम कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। जब हम ईमान के साथ आएंगे यीशु के पास, तो वो हमें कबूल करेगा। आमीन। वो हमें शिफा देगा, वो हमें बचाएगा। और ईमान के साथ साथ अमल करना भी बहुत जरूरी है। आमीन। ईमान के साथ साथ अमल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर खुदा का बंदा यकूब रसूल यूं फरमाता है। सुनिए मेरे साथ, देखिए खुदा के कलाम में मुकद्दस में से यकूब का खत, उसका 2 बाब, उसकी 17वीं आयत लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। आमीन। ईमान के साथ अमल करना बहुत जरूरी है। सुनिए, उस बहन ने ईमान तो रख लिया, ईमान से तो मजबूत हो गई, अंदर ईमान तो जोश मार रहा है कि मैं अब यीशु के पास ही जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी, यीशु से ही शिफा लूंगी। अगर वो ईमान के साथ घर से ना निकलती,
सुनिए जरा गौर से, ईमान के साथ घर से ना निकलती, यीशु के पास ना आती, तो 12 साल गुजर गए से 12 और भी गुजर जाते। 12 साल गुजर गए थे ना। अगर यीशु के पास ईमान के साथ घर से ना निकलती, अमल ना करती, तो वो शफा कभी ना पाती। बथेरे लोग आज भी शिफा पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, लेकिन घर से नहीं निकलते। यीशु के पास आना पड़ेगा शिफा लेने के लिए, बरकत लेने के लिए, सरफराज होने के लिए, चंगा होने के लिए उसके पास आना पड़ेगा, और उसके पास आकर उसको सजदा करना पड़ेगा, उसके हजूर गिरना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि मैं चंगा होना चाहती हूं, चंगी होना चाहती हूं, चंगा होना चाहता हूं, बरकत पाना चाहती हूं, बरकत पाना चाहता हूं। फिर वो बरकत देगा। आमीन। जब तक हम अपने ईमान के साथ अमल को नहीं करेंगे, उसके पास नहीं आएंगे, तो हम उस बरकत को रसीब नहीं कर सकते। आमीन, आमीन। जब हम इस बहन की तरह घर से ही आने से पहले ही, सुने, आने से पहले ही अपने ईमान को मजबूत कर लेंगे कि आज मैं खुदा के पास जा रहा हूं, खुदा के पास जा रही हूं, जो मेरे अंदर बीमारी है मैं सेम वापस नहीं आऊंगी, मैं सेम वापस नहीं आऊंगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरा यीशु जोरावर है। हालेलुया, हालेलुया। वो कह देगा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आमीन, आमीन। इसी तरह हम देखते हैं मरकस की अंजील के अंदर ही पहला बाब, जो भी खुदावंद के पास ईमान से आता है, खुदा उसकी सुनता है, खुदा उसको जवाब देता है, खुदा उसको चंगा करता है, खुदा उसकी मदद करता है। मरकस की अंजील पहला बाब उसकी 40वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और फिर फौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। आमीन, आमीन। ये कोढ़ी हमें बरकत लेने का तरीका बताता है, चंगा होने का तरीका बता रहा है। कलाम कहता है कि वो यीशु के पास आया है, उसने सबसे पहले आकर क्या किया है? मिन्नत की है, ईमान से आया है। घर से ही उसने ईमान को मजबूत किया है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, मेरा कोढ़ पाक साफ हो जाएगा, मैं कोढ़ी नहीं रहूंगा। आमीन, आमीन। उसने घर अंदर अपने अंदर ईमान को मजबूत किया है, ईमान से आया और उसने क्या किया है? मिन्नत की है। लिखा है कि उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आमीन। घुटने टेके हैं, खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर उसे कह रहा है, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। आमीन। ईमान के साथ आकर उसे कह रहा है, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है, तबीबों का तबीब है। ये कह ही देगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु के पास ईमान के साथ आकर उसने मिन्नत की है, घुटने टेके हैं। ये बरकत लेने का तरीका, शफा लेने का तरीका, मिन्नत की है, घुटने टेके हैं, फिर यीशु से कह रहा है अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। आमीन। तो फिर खुदावंद के क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु को उस पर तरस आया, उसने हाथ बढ़ाया और छू कर उससे कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। और कलाम बयान करता है कि उसी वक्त फिलफोर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। यीशु के पास जो भी कोई ईमान के साथ आया खाली नहीं गया। हमें उसके पास आना पड़ेगा ईमान रख के। जब हम ईमान रख के उसके पास आएंगे तो पहले सेम नहीं रहेंगे। हर एक चीज वो बदल देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन आमीन। कितने लोगों को इस बात की समझ आई है? सबको समझ आई है। घर से ही इबादत में आने से पहले अपने आप को तैयार करना है। कपड़े पहनना कोई गल नहीं बनेगी, नहाउन धोना कोई गल नहीं बनेगी। अंदर से तैयार होना है, ईमान को मजबूत करना है कि आज मैं यीशु के पास जा रही हूं, आज वो मेरी सुन लेगा, आज वो मुझे जवाब देगा। क्योंकि खुदावंद कलाम के अंदर लिखा है वो खूबसूरती पर नजर नहीं करता। वो कहता है कि मैं इंसान नहीं हूं कि मैं खूबसूरती देखूं, मैं दिलों पर निगाह करता हूं। हालेलुया। खुदा देखता है कि किस दिल से ये मेरे पास आया है, किस तरह ये मेरे पास आई है। वो दिलों पर निगाह करता है और ईमान के लेवल को देखता है। अगर हमारा ईमान का लेवल उस तरह होगा जिस तरह यीशु चाहता है तो फिर एक सेकंड से पहले शफा, एक सेकंड से पहले बरकत, सरफराजी खुदा ईमानदार को पसंद करता है। आमीन आमीन। घर से तैयार होते वक्त ईमान रखना है कि मैं आज सेम वापस नहीं आऊंगी। जो कुछ मैं दिल में लेकर जा रही हूं, मेरा यीशु, मेरा खुदावंद, मेरा रब, मेरा मालिक, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक देखता है। वो मुझे बदला देगा, वो मेरे साथ होगा। आमीन आमीन। देखें, कोड़ी उसके पास आया, फिलफोर चंगा हो गया, ईमान के साथ आया। ये बहन 12 साल से बीमार थी, ईमान के साथ उसके पास आई, उसी घड़ी चंगी हो गई। तो क्या कलाम के अंदर लिखा है खुदावंद अज़ल से लेकर अब तक यकसा है। आज भी वही खुदा है, आज भी वही एक मिनट में, एक सेकंड में चंगा करने की कुदरत रखता है। जरूरत है हमारा ईमान कैसा है, हम किस तरह उसके पास आते हैं। अगर ईमान के साथ आते हैं तो जरूर शफा पाएंगे, बरकत पाएंगे, सरफराज हो जाएंगे। आमीन। तो आए, वक्त को मद्देनजर रखते हुए हासिल कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 10वां बाब, उसकी 11वीं आयत। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 10वां बाब, उसकी 11वीं आयत। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, चुनाचे किताबे मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आमीन। जो कोई मेरे खुदावंद पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। ईमान से आए, शर्मिंदगी खत्म। ईमान से आए, गवाहियों को लेकर जाएंगे, गवाहियां देंगे, दूसरों को बताएंगे, क्योंकि कलाम बयान करता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा शर्मिंदा ना होगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। आमीन। स्वयं हम अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के और खुदा की तरफ बुलंद करेंगे। हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे। आए दोनों हाथ
आसमां के खुदा की तरफ उठाकर हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे और खुदा के हुजूर मिन्नत इल्तिजा करेंगे कि खुदा हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों को, हमारी मुसीबतों को हमारी जिंदगी से दूर। बहनों, हाथों को बुलंद कीजिएगा। भाई, खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू करें। आपकी बारी है, आप दुआ करते जाएं। आपकी मुश्किलें आपकी जिंदगी से दूर होंगी, आपकी परेशानियां आपकी जिंदगी से दूर होंगी। खुदा जो बहाली और सरफराजी का खुदा है, वो हमें सरफराज और बहाल करेगा। अजीजों, आए खुदा के हुजूर दुआ में, खुदा के हुजूर इल्तिजा करें। उठाइए हाथ, दुआ मांगना शुरू करें और खुदा के हुजूर इस दुआ कोर्स के साथ हम खुदा को पुकारेंगे। हम आवाज होकर खुदा को पुकारिएगा। पाखरू जब तू जुम्बश करे, पाखरू फिर तू बंधन तोड़े। पाखरू जब तू जुम्बश करे, अजीजों, पाखरू फिर तू बंधन खुदा का रूह तोड़े। सारे बंधनों को तोड़ेगा। खुदा का रूह आपकी जिंदगियों को बहाल करेगा। उसकी कुदरत आपको बहाल करेगी। उसका जलाल आपके चारों ओर है। आइए अपने दिलों को अपने खुदा के हुजूर खोल दें। अपनी मुश्किलात को अपने खुदा के हुजूर लाएं। अपनी परेशानियों को अपने खुदा के हुजूर लाएं और दुआ करें। तेरे काम अजीब, पाखरू तेरे काम अजीब। पाखरू तू शिफा देता है। पाखरू जब तू जुम्बश करे, पाखरू फिर तू बंधन तोड़े। जब तू जुम्बश करे, पाखरू फिर तू बंधन तोड़े। पाखरू तू मेरा आसरा, पाखरू तू मेरा आसरा। मैं गिरूं तू उठा देता है। जब तू जुम्बश करे, पाखरू तू बंधन तोड़े। जब तू जुम्बश करे, पाखरू तू बंधन तोड़े। सब दुआ करें कि खुदा आज की शाम आपकी गुजारिशात को सुने। पाखरू मेरे मन में समा, पाखरू मेरे मन में समा। पाखरू तुझसे आ देता है। पाखरू जब तू जुम्बश करे, पाखरू फिर तू बंधन तोड़े। जब तू जुम्बश करे, पाखरू फिर तू बंधन तोड़े। आइए अजीजों, हम दुआ करें। बहरोबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे हुजूर आते, तुझे सजदाए सर मौजूद होते
अपनी सारी आबिंतियां खुदा तेरे हुजूर लाते और दुआ करते हैं खुदा आज की शाम हम सबको अपने हुजूर से बरकत बख्श और बहाली देकर भेजना। लेकिन रब्बुल खुदा मैं तेरा खादम होते हुए खुदा इन बेटों और बेटियों को लेकर तेरे पाक मसबा के सामने आता, सजदा सरबजुद होते मिन्नत और इल्तिजा करते हैं खुदा कि जिस किसी ने जो कुछ मांगा रब्बुल खुदा इनकी झोलियां भर और तेरे मसबा पर तेरे नाम की बड़ी बड़ी गवाहियां हों। खुदा हम के खुदा सबके साथ हो और सबको अपने हुजूर में याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। आज पाले रजा पाक रो, आज पाले रजा पाक रो, पाक रूही बता देता है, पाक रूह जब तुझ बश करे, पाक रूह बंधन तोड़े, जब तुझ बश करे, पाक रूह तू बंधन तोड़े, पाक रूह तू बंधन तोड़े, पाक रूह तू बंधन तोड़े। आमीन आमीन आमीन। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, आज जो सब्र करो। मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, सब्र करो, आज जो सब्र करो, सब्र करो, आज दो सब्र करो। भागना ना रफाकत से, भागना ना शराकत से, भागना ना रफाकत से, भागना ना शराकत से। मेरी सूली को याद रखना तुम, मेरे जख्मों को याद रखना तुम, मेरी सूली को याद रखना तुम, मेरे जख्मों को याद रखना तुम। सब्र करो, आज दो सब्र करो, सब्र करो, आज दो सब्र करो। अंजील को पढ़ते रहना, हुक्म मेरे पढ़ते रहना, अंजील को पढ़ते रहना, हुक्म मेरे पढ़ते रहना। मेरी सच्ची मोहब्बत को भूल ना जाना, पास आके मेरे कभी दूर ना जाना। मेरी सच्ची मोहब्बत को भूल ना जाना, पास आके मेरे कभी दूर ना जाना। सब्र करो, आज
कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। उठाई गई सारी ऑफरिंग के लिए, हदिया के लिए हम उसके शुक्रगुजार होंगे। मैं गुजारिश करूंगा बहन रबीना से कि वो सामने आए और खुदा के हुजूर सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल और दिल की अता गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन लम्हात के लिए जो तूने आज शाम हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए कि हम मैं खुदाई कदूस तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम की इज़्ज़त और जलाल दें। ऐ खुदाई कदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी इन बैठी हुई जानों के लिए। ऐ खुदाई कदूस जिनको तूने बहुतों में से चुना और अपने हजूर आने की तौफीक अता की। ऐ खुदाई कदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यस नासरी आज के इस हासिल कलाम के लिए। ऐ यस नासरी जो तूने हमें अता किया और हमारी बंजर ज़मीन को सरखेज़ किया, मेहरबान प्यारे खुदावंदा, तो हमें तौफीक अता कर ताकि जिस तरह हमने तेरे कलाम से ईमान के बारे में सुना है, इसी ईमान और यकीन के साथ हम तेरी हजूरी में आएँ और जो कुछ भी हम तुझसे मांगे और ऐ खुदा कुदूस यही कहें कि हमारे लिए हो गया है। ऐ खुदा कुदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस उठाई हुई ऑफरिंग के लिए जो तूने ऐ खुदा कुदूस अपने बेटे और बेटियों को ऐ खुदा कुदूस कुव्वत दी कि हम अपनी मुट्ठी को खोलने वाले बने। यसनासी तो इसके वसीले से तू हमारे बकिया पर अपनी ऐ खुदा कुदूस और बरकत से नवाज देना, मेहरबान प्यारे खुदावंदा। ऐ यसनासी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ऐ खुदा कुदूस शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की, और अब जबकि वक्त है कि हम अपने घरों को लौटें, तो यसनासी हम अकेले नहीं बल्कि तुझे अपनी जिंदगियों में लेकर अपने घरों में जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। जिस तरह तूने आने में हमारी हिफाजत और निगहबानी की, इसी तरह तू हमें जाने में भी हमारी बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरा प्यारा और मीठा नाम लेकर, आमीन। सब मिलकर बोले आमीन। ऐ दोनों हाथ आसमां के और खुदा की तरफ उठाएंगे और हम आवाज होकर उसकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। उसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जो अपने कसूरवार को माफ़ करते तुम्हारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त हज़रत जमात के साथ, इन सारे ख़ानदानों घरानों के साथ, इस गली मोहल्ले के साथ, शहर फैसलाबाद के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुद्स के नाम में, आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ।